Good morning, everyone. Sorry, there are some technical issues. So, I'm giving my recorded lecture to this is my recorded lecture. So, there is no live classes for today because there are some issues arises out. Okay. And because of that issues, we have to see it. Now, crack all UPSC civil service optionals with India's largest learning platform and get the subscription of it. So, once you get the subscription of it, you see you'll be getting daily live classes. You'll be getting daily live classes, chat with the educator, engage with discussion, asking doubt, answer poll, and many more things. There are altogether 15,000 plus structural courses available here, and all the courses are well structured. Live test and quiz are there only and only to evaluate the performance of learner. Okay, live test and quiz are there only and only to evaluate the performance of learner, and you see unlimited accessibility literally means that if you fail to get daily live classes, then recorded class is available. And recorded class, when it is available, you see you can listen this recorded class anytime, anywhere. You see, download this Unacademic Learning app through Google Play or App Store in Apple phone. About me, you see, about me, I have completed my graduations from Calcutta University in science subject. I'm acting as a mentor for last 11 years and so in public administrations, polity, governance, and few more subjects. I have appeared for UPSC Civil Service interview twice and have served many reputed IS coaching institutions at Delhi and many more states. Under my guidance, many aspirants have cracked UPSC Civil Service as well as many state level exams too. Okay, along with me, there are top 100 educators. Along with me, there are top 100 educators. And you can see the name of few educators in the slides who will be nurturing you to make your dream fulfill. Then you see, as I have said, there are more than 15,000 plus courses are available. So in this more than 15,000 plus courses, you see polity, governance, international relations, geography, science and technology, history, optional courses, and many more courses are available here. Okay, these are the examples, few examples. And as you all know that these courses cannot be completed in 1 month. These courses cannot be completed in 1 month, 3 months, or 6 months. So as you know that this cannot be completed in 1 month, 3 months, or 6 months, but if you want to get subscription, you have full right to get it, and you get it, you have to pay this amount. These are the base pay. And if you apply my promo code MDYT, if you apply my promo code MDYT, you see you will pay you will get 10% discount, and with this 10% you have to pay this much amount: 81,000, 8,100, 20,250, 36,450. And you see, for this 12 months you will get 49,500. And for 12 months, if you are getting 49,500, if you apply my promo code MDYT, you will be getting 10% discount, and you have to pay 44,450. And for 12 months, you have to pay 72,000. And in 72,000, 24 months, 72,000, if you apply my promo code, that is MDYT, you will be getting 10% discount, and you have to pay 64,800. And for 36 months, you see your fees is 90,000. But if you apply my promo code, you'll get 10% discount, and you have to pay 81,000. So you see, when I say in plus courses, Unacademy provide two types of courses. One is plus courses, one is iconic courses. And this is the subscription. If you are taking with plus courses. So don't forget to mention MDYT. Further, if you are going to take with iconic courses, so iconic courses, you see, these are the extra benefit which you will get, and it is not available in plus courses.
These are the extra benefits you'll get and which is not available in plus courses. So for 12 months, you see 69,500 is the fees. And for 12 months, you see 62,550 you have to pay if you apply my promo code. That is MDYT. And for 24 months, you see you have to pay 1 lakh 1 lakh 7,000. And for 24 months, you see if you apply my promo code MDYT, you will get only 10% discount you'll be getting, and you have to pay 96,300. 96,300. And for 36 months, the payment is 1,41,000. But if you apply my promo code, you see you'll get 1,21,900. 1,21,900 and 10% discount you'll be getting. 10% discount you'll be getting. So as I was discussing yesterday itself about the silent feature of Indian Constitution, I was discussing this only, that Indian Constitution, what are the silent features? Salient feature literally means that what are the features which Indian Constitution has incorporated. You see, silent feature of Indian Constitutions. What are the features which Indian Constitution has adopted? And yesterday only I discussed about that we have borrowed. This is borrowed Constitution. You see, this is borrowed Constitution. Yes, this is borrowed Constitution. And I have also already said that it has been taken from different sources. It is because the framer of the Indian constitutions were aware of difficult faced in the working of all the known constitution of the world. All the known constitution of the world. You see. Then you see, this also I have discussed yesterday, that Indian constitution was a reason of sort to selective incorporation of good provisions of those constitutions in order to avoid defects and loopholes that might crop up in future in the working of Indian constitution. Hence they borrowed elements which they considered suitable to Indian social setting. Such as parliamentary government was in the view of the pluralistic nature of Indian society. Why pluralistic nature? क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में मल्टी डायमेंशनल कल्चर, मल्टी डायमेंशनल नेचर इंडिया में एग्जिस्ट करता है सोसाइटी में. So because of that, you see, it has happened. Because of that, it has happened. Directive principle, non-justiciable in the view of practice constant for the nascent state. Emergency, this also we have discussed. Make a strong centers in order to throw disintegrating tendency and so on. हम strong center की बात जब करेंगे ना, then when we'll go to Indian and Union and Territory ना, Union and Territory, you will see that we'll be discussing how center is strong, and I'll be giving you the example also. So just you keep in your mind that कि अभी केंद्र जो है वो बहुत शक्तिशाली है. Okay, केंद्र is really, so it is, so if it is a patchwork, as Dr. Bhimrao Ambedkar observed, it is a beautiful patchwork. जैसे मैंने कल कहा था कि किसी स्टूडेंट ने somebody has asked sir it's not a patchwork, तो मैंने बोला कि देखो ये पैचवर्क है, और अगर ये पैचवर्क है तो ये बहुत ब्यूटीफुल पैचवर्क है, बहुत ब्यूटीफुल. Then you see why Indian constitution is called the longest constitutions of the world. अब देखिए इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था ये लॉन्गेस्ट नहीं था, ये सेकेंड लॉन्गेस्ट था.
इंडिया से पहले, यू सी, इंडिया से पहले देयर वाज अ कंट्री कॉल्ड यूगोस्लाविया, जो कि अभी बल्कनाइज्ड हो गया, टूट गया। मॉन्टेनिग्रो, सर्बिया और भी कुछ स्टेट उनके उसके अंदर से निकल के आ गई। तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन हमसे ज्यादा लॉन्गेस्ट था और लेंथीएस्ट था। ओके, तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन हमसे ज्यादा लॉन्गेस्ट और हमसे ज्यादा लेंथीएस्ट था। ओके, और इट इज द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि हमने पूरे वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन को देखा और उसमें बहुत सारी चीजों को इंक्लूड किया। और जब उन्होंने बहुत सारी चीजों को इंक्लूड किया, तो आप खुद नोटिस कीजिए कि इतनी सारी चीजों को अगर आप इंक्लूड करेंगे तो लॉन्गेस्ट हो गई। और लॉन्गेस्ट का एक बहुत बड़ा कारण है इंडियन डाइवर्सिटी, मल्टी लैंग्वेज, मल्टी रिलीजियस, बहुत सारी चीजें। So the Constitution of India has a distinctions of being the lengthiest and the most detailed of all the known written constitution of the world. यानी वर्ल्ड में जितनी भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, वर्ल्ड में जितनी भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ओके, वहां पे आप देखिए वर्ल्ड में जितने भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का सबसे लेंथीएस्ट हो गया। अब यूगोस्लाविया बल्कनाइज हो गया तो उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन रहा नहीं, तो इसलिए इंडिया का सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट हो गया। ओके, एंड वर्ल्ड में जितने भी लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उनमें से इंडिया का सबसे ज्यादा बड़ा है। और ओरिजिनली इट कंटेन्स 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल्स। Originally, it contains 395 articles and 8 schedules. And how many parts? 22 parts. उसके बावजूद भी, इतना होने के बाद, यानी इनिशियली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल्स एंड 22 पार्ट्स होने के बावजूद भी टाइम टू टाइम इसमें अमेंडमेंट होते गए और सब पार्ट, सब आर्टिकल बढ़ते गए, तो और ये बल्कनाइज्ड हो गया। Through subsequent amendment, while a large number of article has been repealed, even a large number of article has been added to the list crosses more than 455 marks, 440 marks. इसका मतलब कि बहुत सारे आर्टिकल जिनका कोई यूज नहीं था उसको हमने रिपील कर दिया, हटा दिया, और बहुत सारे आर्टिकल को हमने उसके अंदर इंक्लूड भी किया है, जिसके वजह से आज हमारे संविधान का जो बल्किनेस है वो बहुत वॉल्यूमस हो गया और वो बढ़ के चला गया है 450 से पार। और इसके बावजूद 4 नए शेड्यूल भी ऐड किए गए हैं ड्यूरिंग लास्ट 50 years of the functioning of the constitution. During last 50 years of the functioning of the constitution. Last 50 years of the यानी ये 8 जो नए शेड्यूल ऐड किए गए हैं, that is 9 schedule, 10 schedule, 11 schedules, 12 schedules. अब ये जो नए शेड्यूल ऐड किए गए हैं, यू कैन सी व्हाट आर दीज शेड्यूल्स।
Number one is land reform. Added by First Amendment Act. (1951). Second one, 10th schedule. This 10th schedule was added related to anti-defection law. (52nd Amendment Act). Third, 11th, it is related to Panchayat. (73rd Constitutional Amendment Act 1992). And 12th, it is municipalities. (74th Constitutional Amendment Act 1992). So you see, these are the new schedule added. ये 4 जो नए शेड्यूल हैं, जो यहाँ पे लिखा है 4 न्यू शेड्यूल्स वर एडेड. अब देखिए, ये जो नए शेड्यूल्स आए, इसके अंदर भी कुछ प्रोविजंस आएंगे, और 1-2 पेज का तो प्रोविजन होता नहीं है. ये सब प्रोविजंस मोर देन 100 पेज का होता है, 50 पेज का होता है. तो अब इतने पेजेस अगर कॉन्स्टिट्यूशन में होगा तो ये बल्कि तो होता ही जाएगा. हाँ, इसकी बल्कीनेस आपको दिखती जाएगी. ओके, तो जब ये बल्कि होता जाएगा तो ये एक बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. अब देखिए, आप खुद देखिए, जितने जजेस हैं, लॉयर हैं, इन लोगों को शायद ही हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑन दी टिप्स याद हो, क्योंकि इतना बल्कि है, इतना लेंदी है कि यार बहुत मुश्किल है याद करना. बहुत मुश्किल है याद करना. ओके, ये एक बहुत मुश्किल की बात है कि उसके अंदर ये सारी चीजें किसी को भी याद हो. So that is why this is also one of the reason that it has become one of the most bulkiest constitution. Okay. Following are the reasons to make constitution bulky. अब देखिए, ये तो हमने आपको शॉर्ट में बताया, अब इसको थोड़ा डिटेल में भी देख लेते हैं कि क्या क्या कारण है कि हमारे संविधान को इतना बल्कि बना दिया गया, और इसे बल्कि बनाने के पीछे रीजन क्या है. What are the reasons that the constitution of our India is bulky? रीजन क्या है? तो देखिए, when we say about the constitution of India bulky, the framer of Indian constitution borrowed a large number of good provisions from different countries. अब देखिए, फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बोरोड अ लार्ज नंबर ऑफ गुड प्रोविजंस. ये उस वक्त गुड था, आने वाले समय में ये बैड दिखा, तो हमने बहुत सारे प्रोविजंस को रिपील कर दिया, मतलब प्रोविजन हटा दिया, किंतु आर्टिकल एज इट इज रखा. प्रोविजन हटा के मैंने आर्टिकल एज इट इज रखा. और provision of different constitution of the world. They in fact wanted to make us to accumulate experience gathered from the working of all the known constitution. यानी उनका ये मेन मोटिव यही था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सालों से चल रहा है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग क्या करेंगे, उसका एक्सपीरियंस गैदर करेंगे फ्रॉम द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. यानी उस देश में कैसा है कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बारे में. ओके, उसके लिए हम लोग बात करेंगे. और
Beside, the constitution makers put down the provision in detail so as to avoid any confusions that may occur in future. देखिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे कितने फार साइड थे, वो कितने फार साइड थे कि उन लोगों ने क्या किया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में what they did in our constitution is that they put many provision in the constitution. They put many provision in the constitution. ओके और इसलिए कि फ्यूचर और प्रोविजन उनको इतने अच्छे से डिटेल में रखा कि फ्यूचर में कोई कंफ्यूजन हो, बट फिर भी फ्यूचर काफी डायनामिक है, एंटिसिपेट करना मुश्किल है कि कल क्या होगा, उसके आगे कल क्या होगा। तो इसके वजह से ये समस्या आ गई। नंबर 2, by framing a single constitutions from the entire nations, the constitution maker have laid down the structure not only of central but also of state. देखिए तो यानी अगर आप कहेंगे कि भारत सरकार जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हमारे हैं, जैसे आर्किटेक्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कहिए या फिर सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर कहिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कितने अच्छे से और कितने समझदारी से संविधान को क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशंस जो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के प्रोविजंस को डिफरेंटली मेंशन किया, इसीलिए हमारे संविधान में को ज्यादा समय लग गया। जबकि अगर कंपेयर करेंगे यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, तो यूएसए का दैट इज कंट्री हैव इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन and state have its own constitution. State have its own constitution. यानी हर लोगों का अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट का है, इसीलिए उनके में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग उस चीज को बना दिया। हमारे यहाँ क्या है कि हमारा, आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट वाज वेरी डिफिकल्ट, एंड व्हेन यू इंटीग्रेटेड द स्टेट, सो यू कैन नॉट अलाउ देम टू हैव देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर उनको अपना ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था तो राजा महाराजा आप अपना ही शासन चला रहे थे, उनका अपना संविधान था, वो चला रहे थे, उसके अकॉर्डिंग क्या दिक्कत थी? Yes, they were not facing any problem. They were not facing any problem at all. बट अमेरिका में अगर आप यही देखें इसी चीजों को, तो हमें तो इसलिए हमें क्या करना पड़ा कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का संविधान जो है एक जैसा और एक समरूप बनाना पड़ा, सिंगल, कि फ्यूचर में कहीं कंफ्यूज। बट इन केस ऑफ अमेरिका यू सी America has its own constitution and state has its own constitution. You see, the author of the Indian Constitution have virtually reproduced the Government of India Act 1935. मतलब most of the provisions which are mentioned in the Constitution, mentioned in the constitutions under the Government of India Act 1935 has been taken. यानी कहा जाता है कि 60% of the provision has been taken from Government of India. Why do we have to take most of the provisions from Government of India Act? हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से बहुत सारे प्रोविजंस क्यों लेने पड़े? क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इससे पहले जो ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ गवर्न करते थे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में बहुत सारे प्रोविजन ऐसे थे जो उसे हम एक्सपीरियंस कर चुके थे. सो दैट इज व्हाई वी इंप्लीमेंटेड इट आल्सो. दैट इज व्हाई. सो
इन प्रोवाइडिंग मैटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल। जी बिल्कुल, आप देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल के बारे में, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, स्टेट सेक्रेटेरिएट, कलेक्टोरेट, डायरेक्टोरेट, ये सब कहां से, ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोविजन से ही लिया गया है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इलेक्शन कमिश्नर्स, ये सारे प्रोविजंस हम लोगों ने वहां से लिए। इसलिए इसको नहीं लिया गया। इट वॉज नॉट ओनली बिकॉज द पीपल वॉज accustomed to the then existing system of administration, but also because the authors had apprehensions that it was perfectly possible to prevent constitution without changing the forms of administration. इसका मतलब कि आप खुद नोटिस कीजिए कि संविधान को इसलिए लिया गया, यही एक ये कारण नहीं है कि हम लोग ब्रिटिशर्स ने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया था उनसे हम लोग बहुत ज्यादा परिचित थे, नहीं, इसलिए भी हम लोगों ने लिया। क्यों? क्योंकि भाई हम जो ये एडमिनिस्ट्रेशन है, विद इन अ नाइट यू कैन नॉट चेंज इट। केंद्र सचिवालय, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, कैन यू चेंज इट? नो, विद इन नाइट यू कैन नॉट। स्टेट सेक्रेटेरिएट यू कैन नॉट। एंड ऑफ कोर्स it was well known for us. So this was also one of the reason that we adopted most of the provisions from Government of India Act 1935. अब उन्होंने हाई कोर्ट बना के गए थे, सुप्रीम कोर्ट बना के गए थे, 2 दिन में क्या हम उसे चेंज कर देंगे? उनको बनाने में तो कितने साल लग गए। आप खुद नोटिस कीजिए कि एक स्टेट जो तेलंगाना अभी आंध्र प्रदेश से बाहर निकला है, हाई कोर्ट दोनों का एक है, और उसको डेवलप करने के लिए रिक्वायर 10 years। तो भारत पहले संविधान बनाएगा कि पहले इन सब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करेगा? तो जो था उसी को हम लोग कंटिन्यू करते चले गए। दैट इज व्हाई यू सी, अकॉर्डिंग टू डीडी बासु, अकॉर्डिंग टू दुर्गादास बासु, this is perhaps the most important factors for the voluminous size of the constitution. देख लीजिए तो डीडी बासु ने क्या कहा। दुर्गादास बसु ने कहा है कि हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से 60% प्रोविजन लिए हैं, मतलब ऑलमोस्ट मोर देन 200 आर्टिकल्स हमने एज इट इज वहीं से लिया है, और बहुत और बाकी चीजें हम लोग दूसरे वर्ल्ड से लिए हैं। तो हम लोगों ने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए हैं, उसका रीजन भी आपको पता चल गया कि क्यों लिया गया। तो डॉक्टर डीडी बासु ने कहा है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बल्कि होने का सबसे बड़ा कारण यही है, वॉल्यूमस होने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का जो प्रोविजन है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डीपली दिखता है। और सबसे बड़ी बात है कि हम जैसे कोई बहुत सारी इंस्टीट्यूशन है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जी, अब ये सब चीजें चेंज नहीं हुई तो ये एक और भी कारण हो गया कि चूंकि पीपल उससे अवेयर थे और हम उसको 2 दिन में चेंज करके नया एस्टैब्लिशमेंट नहीं ला सकते हैं, तो हम उसको इंडियनाइज करेंगे अपने अकॉर्डिंग, तो वो ऑब्वियसली वॉल्यूम बढ़ाता चला जाएगा। तो ये भी एक कारण। और ये हमारे डीडी बासु ने बात, दुर्गादास बसु ने, दो ही हैज डाइड इन 2005, तो ये एक बहुत एमिनेंट स्कॉलर थे कॉन्स्टिट्यूशन के, जिन्होंने ये बात कही। The vastness of the country and peculiar problems related to the language have added to the bulk of the constitution. अभी कहा जाए ना कि कहते हैं ना कि आग जब जलता हो तो उसमें घी डाल दो या पेट्रोल डालो तो वो और आग तेजी से बढ़ जाएगा। तो अभी ये सब चीज हमारे कम नहीं थे कि पूरे वर्ल्ड से हमें कॉन्स्टिट्यूशंस को रीड करके और जो अच्छे प्रोविजन है उसको लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिया, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो था उसको लिया। ये अभी कम नहीं थे कि हमें ये भी सोचना था कि इंडिया का जो एरिया वाइज है, इट इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इट इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड।
जी हाँ, ये सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। और इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लैंग्वेज प्रॉब्लम। आप देखिए ना, एक गांव से, एक रूरल एरिया से दूसरे रूरल एरिया, इफ यू गो ना, यू विल सी डिफरेंट लैंग्वेज। तो उसके अकॉर्डिंग भी हमारे संविधान को बनाना बहुत जरूरी था। इसलिए दैट दैट ऑल्सो बिकम्स वन ऑफ द रीजंस टू कॉल इंडिया एज अ बल्किएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी एक कारण बना कि हमको हमारे संविधान को बल्कि बोलने का। देन इट incorporates part 4 of the chapter 4 of our constitution, that is directive principle of state policy, यानी राज्य के नीति निर्देश तत्व। पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज। और ये दोनों नॉन जस्टिसिएबल है। और ये दोनों नॉन जस्टिसिएबल है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या एक पेज में लिखा गया है? नहीं, इसकी भी काफी लंबी हिस्ट्री है। तो ये भी क्या किया गया कि ये भी हमारे थिकनेस ऑफ वॉल्यूम को बढ़ा दिया। तो आप कहेंगे कि सर ये तो अच्छी बात है कि पार्ट 4 और पार्ट 5, पार्ट 4 और पार्ट 4 रखा गया, पर इसका कहने का मतलब है कि ये नॉन जस्टिसिएबल है। जैसे फंडामेंटल राइट है, ये जस्टिसिएबल है। और जस्टिसिएबल होने के बाद, यू सी, जस्टिसिएबल होने के बाद इसमें इतने अमेंडमेंट हुए कि ये और भी बल्कि बन गया। तो ये भी एक कारण हो गया वॉल्यूमस बनने का। ओके, यू सी। उसके बाद देखिए क्या कारण, यू सी, बहुत सारे कारण आपको मिलेंगे। देर आर मेनी मोर वर्क्स, मेनी मोर थिंग्स विच यू विल गेट इट। बहुत। अब देखिए सेकेंड वन इज द फेडरल रिलेशंस elaborately deals with फेडरल रिलेशंस। फेडरल का मतलब क्या होता है? फेडरल का मतलब होता है जहां सेंटर और स्टेट। अगर आप नोटिस करें अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन, द कंट्री हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। द कंट्री हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। और स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट इज 50 स्टेट्स हैव देयर own constitution. Have their own constitution. और अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन, इनके 50 कॉन्स्टिट्यूशन को अगर इसके यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अमलगमेट कर दिया जाए, तो वो दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा। हो जाएगा ना? दैट मीन्स if 50 state constitution is amalgamate or associated with American constitution, that is country's constitution, that it would become, then it will become more voluminous. But ऐसा वहां नहीं है। हमारे स्टेट में स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है, स्टेट का अपना संविधान ही नहीं है। इसलिए उन सारे स्टेट्स के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए सेंट्रल ने ही कॉन्स्टिट्यूशन और सब फुलफिल करके ही बनाया गया। काश अगर अमेरिका में ऐसा होता तो वो भी एक बहुत बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता।
बट ऐसा नहीं था. So you see, when we say about federal relation, elaborately deals with Indian Constitution incorporates not only provisions related to units but also elaborately deals with for the relations between federations and the unit inter se, whether legislative, administrative or financial. ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. You see, this is one of the big issues कि हम जब फेडरेशन की बात करते हैं तो हमारे सारे यूनिट्स को इंटरलिंकिंग किया गया है. और कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम रिलेशन फेडरल रिलेशन की बात करते हैं तो ये लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल रिलेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उसमें भी फाइनेंशियल रिलेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट. So as to prevent conflict as far as possible. Conflict as far as possible. यानी ये सब इसलिए किया गया है कि जो फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट ना क्रिएट हो. इन फ्यूचर देयर शुड बी नो कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट. इट ऑल्सो प्रोवाइडेड अ मैकेनिज्म फर्दरिंग इंटर स्टेट रिलेशनशिप. यानी अगर स्टेट और सेंटर में कहीं इश्यूज हो रहा है तो एक नया प्लेटफॉर्म दैट इज इंटर स्टेट रिलेशनशिप एंड दैट वाज क्रिएटेड इन 1990. Chairman, Prime Minister, and other chief ministers are its member. और ये इसलिए किया गया है कि आप कोऑर्डिनेशन करें और जो डिस्प्यूट है अपने में मिलकर सुलझा लें अमंग दी स्टेट्स. आप अपने में करके सुलझा लें. ओके okay? और इसके लिए एक प्लेटफॉर्म फोरम क्रिएट किया गया दैट इज इंटर स्टेट रिलेशनशिप और जो एग्जिस्ट कर रहा है बट मीनिंगलेस. कोई उसके अंदर काम नहीं हो रहा. ओके okay? कोई काम नहीं हो रहा. तो आप देखिए कि व्हेन वी टॉक अबाउट व्हाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हेन वी टॉक अबाउट व्हाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बल्कि, अगर क्वेश्चंस आ गया आपसे और पूछा गया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बल्कि, देन यू हैव टू से द आंसर दैट व्हाई इट इज बल्कि एंड आई हैव सेड द रीजन फॉर इट. And I have said the difference between it. हमने आपको इसका डिफरेंसेस बता दिया कि व्हाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मोर बल्कि. और बहुत सारा कारण, इफ यू गो थ्रू दी फैक्टर्स तो यू सी आवर लैंग्वेज प्रॉब्लम. Then regionalism. Then you see having having single constitution. Third you see, fourth you see
inculcation of the provision inculcations of the provisions mentioned in Government of India Act 1935. दूसरा, administrative setup. Administrative setup. Okay. And diversities, you see, then we say diversity. Diversity of India. So there are many more factors. Relation between administrative, legislative, and financial relation. This is also a factor. तो बहुत सारे कारण मिलकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस को बल्कि बना दिया गया. तो क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बल्कि, तो आपको बोलना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस कंपेयर टू अदर कंट्रीज of the world, it can be said as bulky, but it is the most dynamic form of constitution in the world because it incorporates all the aspects which are mentioned in day-to-day life. Okay, so that is why you see we say Indian constitution bulky है, क्या है, आपको बहुत सोच समझ के जवाब देना पड़ेगा. Okay. So now, after doing this, जब हम समझ गए कि फीचर में इंडिया बल्कि क्यों है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन क्यों है, हमने दिस ऑल वी हैव डिस्कस. नाउ विल बी डिस्कसिंग अबाउट, अब हम जो डिस्कस करेंगे, यू सी व्हाट आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट इज डिफरेंसेस बिटवीन फेडरेशन एंड कॉन्फेडरेशन. If you know the view, please write in the comment box. I'll be looking at that comment box. अगर आप जानते हैं तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम उस कमेंट बॉक्स को देखकर I'll be coming to know that yes, who has said what. But टाइमिंग भी मेंशन करना जरूरी है कि आप कब उसके अंदर देख रहे हैं. क्यों? क्योंकि हमारे बताने के बाद अगर आप बताएंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेडरेशन एंड कॉन्फेडरेशन, तो दैट विल नॉट डू, वो नहीं चलेगा. यस, दैट विल नॉट वर्क. Okay, so now see, when we talk about federations, so federation is a close associations of legal between two or more units, while confederation is a loose associations of two or more states. Please wait. You see, now, we'll try to see that this was technical, so I have to arrange it in a systematic manner. So you see, जब हम फेडरेशन की बात करते हैं तो फेडरेशन का मतलब ही होता है, अच्छा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फेडरल एंड फेडरेशन ऑल्सो, ये भी आप जान जाए. अगर हम बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट, देयर आर थ्री, वेट अ मिनट प्लीज,
wait. Now, agar now if I talk about, you see, if I talk about, there are 3-4 things go side by side. Federation, confederation, federations, confederations, and union. That means confederations, confederations, and अगर यूनियन की हम बात करते हैं तो यू सी डिफरेंसेस हैं इनमें. हम लोग पहले विल ट्राई टू सी डिफरेंसेस ऑफ फेडरेशन. इज अ क्लोज एसोसिएशन ऑफ लीगल. लीगल का मतलब क्या होता है? संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल. यानी किसी न किसी अथॉरिटी ने उसे लिखकर पास किया है और पास करने के बाद उसे एक्सेप्टेंस दिया है. उसे एक्सेप्टेंस दिया है. ओके. तो जब पास्ट वालों ने इसे लिखकर और इसे एक्सेप्टेंस दिया, तो लीगल का मतलब है कि सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया कि हाँ हम लोग हैं. जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लीगली एक्सेप्टेड बाय द पीपल, यानी संविधान सभा प्रेसिडेंट ने इसे एक्सेप्ट किया और हमने उसे मान लिया. बिटवीन 2 और मोर यूनिट्स. यानी अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो नॉर्मली फेडरेशंस में क्या होता है? फेडरेशन में एग्जिस्टेंस ऑफ 2 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. और 2 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर 2 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट आता है. आपका कौन कौन सा, हम आपको ये भी बता देते हैं. 2 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में आएगा आपका सेंटर और स्टेट. भारत में कितने फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है? आप लोग कहेंगे सर देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया. You will say that sir there are 3 forms of government in India. और हमारे यहाँ 3 forms of government है ही नहीं. There is no 3 forms of government. क्यों? क्योंकि आप कहेंगे सर सेंट्रल, स्टेट और लोकल. अरे भाई लोकल स्टेट का पार्ट है. पंचायती राज, म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये स्टेट का पार्ट है. स्टेट इज गोइंग टू लुक आफ्टर इट. स्टेट इसे देखभाल करने जा रहा है. स्टेट इज गोइंग टू लुक आफ्टर इट. और पंचायती राज इज अ स्टेट सब्जेक्ट, बट स्टेट सब्जेक्ट आर नॉट अ यूनियन सब्जेक्ट. याद रखो हमारे देश में. इसीलिए वी हैव 2 फॉर्म, दैट इज सेंटर एंड स्टेट. While confederation is a loose association of 2 or more states. यानी कॉन्फेडरेशन जो है वहां भी सेंटर, यू सी सेंटर एंड स्टेट. वहां भी देखिए सेंटर और स्टेट होगा, बट ये लूज है. इसमें कोई लीगल बाउंडिंग नहीं होता है. जैसे आप देखिए लीगल बाउंडिंग का मतलब हो गया स्टेट का अपना फ्लैग होगा, स्टेट सेंटर की बात मानने से इनकार भी कर सकता है. स्टेट जो है वो सेंटर की बात मानने से इनकार कर सकता है. और स्टेट एक नया स्टेट सेंटर को छोड़कर एक कैपिटल भी बन सकता है, एक अपना कंट्री भी बना सकता है.
जैसे यूगोस्लाविया से देखिए मॉन्टेनिग्रो, सर्बिया, ये सब निकल के बाहर अपना एक कंट्री बना ली। यूएसएसआर से निकल के कर लिए ये। और फेडरेशंस में, कॉन्फेडरेशन में ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो बाहर निकल जाएगा। लूज है तो बाहर निकलेगा, सिसीड हो जाए। देखिए यहीं से सारी चीजें पता चल जाती है। यू आर नोइंग मेनी मोर थिंग्स फ्रॉम हियर इटसेल्फ, isn't it? Now see, in our federations, यूनिट नॉर्मली डू नॉट हैव द राइट टू सिसीड। यानी फेडरेशंस में यूनिट जल्दी सिसीड नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सिसीड करने के लिए दे हैव टू पास अ स्पेशल मेजॉरिटी 3/4, विच इज वेरी टफ। इंडिया में तो आप हो ही नहीं सकते, क्योंकि इट इज लीगल बाइंडिंग, संविधान के तहत लीगल बाइंड किया गया है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज लीगली बाइंडिंग, as in India and Pakistan. आप सिसीड नहीं कर सकते। बट इन केस ऑफ confederation, the state always enjoy the right to secede. अभी मैंने आपसे क्या कहा, जब उनका अपना फ्लैग होगा, अपना से, तो वो ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो सिसीड कर जाएंगे। Isn't they have a more chance for seceding? ज्यादा चांसेस बनता है वो वहां से बिखर जाए, निकल जाए। एंड दैट इज व्हाट हैपेंड। यू कैन सी द एग्जांपल ऑफ CIS country. अर्लियर USSR जो था, कॉन्फेडरेशन के वजह से, यू सी इट वाज डिवाइडेड। मॉन्टेनिग्रो, कॉन्फेडरेशंस, यूरोपियन यूनियन, कॉन्फेडरेशन। Then third point, a federation is a sovereign body. यानी फेडरेशन में कंट्री जो है वो सोवरेन है। Yes, in federation, if you see, the country is sovereign. But in confederation, यानी फेडरेशन में कंट्री सोवरेन है। कंट्री सोवरेन है, स्टेट्स आर नॉट sovereign. Yes, states are not sovereign. बट इसका ठीक उल्टा होता है कॉन्फेडरेशन में। कॉन्फेडरेशन यूनिट में स्टेट्स आर ऑलवेज सोवरेन। यानी स्टेट अपनी इच्छा से उस जो कंट्री है उसके अंदर, USSR जैसे था पहले, तो जितने भी स्टेट थे, जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोल, ये जितनी भी स्टेट हैं, ये अपनी इच्छा से ज्वाइन किए थे। जी हाँ, अपनी इच्छा से ज्वाइन किया, अपनी इच्छा से लोग ज्वाइन किए थे। और यही रीजन बना
कि यूएसएसआर के जितने भी स्टेट्स थे उन लोगों ने विद्रोह करके अपना एक कंट्री बना लिया। देखिए ना, जितने भी स्थान है, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये जितने भी, ये लोग अपने से क्या किया कि ये सारा स्टेट बना लिया। और ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है देश के लिए। ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है। और इसे, दिस इज ओनली द रीजन कि अब वर्ल्ड में कॉन्फेडरेशन का कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है। वर्ल्ड में कॉन्फेडरेशन का कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है। ओके, एंड द फोर्थ कॉन्सेप्ट of federation and confederation is, in federations there is a legal relations between the federations and its people, but in confederation the peoples are citizens of the respected unit of confederations। यानी अब आप यहीं से समझ जाएं कि confederations में और federations में कितने का अंतर आ गया। यानी फेडरेशन में पीपल आर सुप्रीम, रिलेशन है वो लीगल बाउंडिंग है, क्योंकि पीपल ने संविधान बनाया और पीपल ने एक्सेप्ट किया कि हाँ हम इसका पार्ट बनना चाहते हैं। बट कॉन्फेडरेशन में डिफरेंट डिफरेंट यूनिट के पीपल अपने हिसाब से सोचते हैं, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट के पीपल अपने हिसाब से सोचते हैं। ये एक बहुत बड़ी इश्यूज है। So that is why what we say, this is the differences between confederations and federation. Okay, so as our time ends today, so tomorrow I'll be continuing from federations and non-confederation and confederations. कल मैं फेडरेशंस एंड कॉन्फेडरेशन से फिर कंटिन्यू करूंगा। आज तक के लिए मैं अपनी क्लास यहीं पर एंड कर रहा हूं। If you have any doubt, please write in a comment box and I'll be answering your questions. Okay, so if you have any doubt, so I hope that till now it is clear to you all. और अगर आपको और ज्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आप अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करें and don't forget to mention my promo code, that is MDYT, to get more detailed knowledge of the constitution. Okay then, till then, bye, enjoy your life.